कल्चर पहले। It was in good humor according to me. कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। I don't believe in censorship. We are not ready for such kind of a show. aggressive औरत छुपी हुई है। तो मैंने तो उनको डांटा, मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा है। देखने का नजरिया होता है तो बुरा क्या है? How is it harming anyone? मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहूँगा और उम्मीद भी करता हूँ कि आप उसका आंसर भी करेंगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में एक विवादित शो आयोजित किया गया था जिस पर महिलाओं के प्रति प्रतिरूप को तार तार कर देने वाले जो जोक्स, कमेंट्स, इशारे किए गए थे, उन पर बॉलीवुड की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हैं हंसती हुई नज़र आई थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से मैंने उसको देखा था और हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है, आपका एक है, मेरा है, किसी और को कुछ और होगा। मुझे ये एक ऐसा, इट वाज इन गुड ह्यूमर अकॉर्डिंग टू मी। इट वाज जस्ट नॉट सपोज टू बी एंड मेंट टू बी टेकन वेरी सीरियसली। दैट्स द वे आई लुक एट इट। Just like how this is my opinion, someone else is free to have their own opinion, and that's the beauty of living in a democratic setup. I think I said whatever I had to say online on Twitter. Promise that day. Yeah, so I we would promise like you. to- You know what I've said on Twitter, right? You guys have read my comments on Twitter. You're very welcome to publish that. I've said whatever I have to say. I've made the comments, and I said what I had to say because I saw the show. And whatever I've said is on Twitter. That is my statement on it. For me, that's exactly what I have to say. I love the comments that AIB already made. See, it doesn't matter what the content is. People should be allowed to put out anything that they want out there. There shouldn't. I don't believe in censorship, to be very honest. And I think that's all that I have to say. That's it. Sonam, are you happy that the video is finally taken down from the website and it's not there? You need a sign in now. I said what I have to say. I don't think like I said, I don't believe in censorship. But Twitter has limited access. Not many people, have Twitter accounts. So through That's television not media, in, if we could have. not in India, and it's really unfortunate. AIB has taken it down themselves. भले हम फिल्मों में जुड़े रहे ना रहे, एक्टिंग करे ना करे, लेकिन ये स्टाइल के लिए अवार्ड मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं AIB वीडियो आपने जैसे पता आपने देखा तो मजाक भी इसी बात पर बनाया गया था, एक्टिंग से रिलेटेड। जी, मुझे अभी एक तो नॉमिनेशन मिला है फिल्मफेयर के लिए। मेरा चौथा नॉमिनेशन है। जितेश, टेक अप फॉर मी। मेरे को एक्टिंग भी आती है। आप मुझसे इनसिक्योर होकर बोल रही हैं क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर बार यू ट्राई टू क्रिएट मिस्चिफ, यू नो। It's not आप like नो that. यार, you don't like me, I feel. नहीं ऐसा नहीं है। Honestly, we no, love you. I don't. You're always trying to provoke me into saying something. I've made it this thing just to be positive and nice about everybody. सब खूबसूरत है, सब stylish है। ठीक है, जो मैंने कहा। One last question. जितेश पिल्लाई से मेरा सवाल है। जितेश पिल्ले से आपसे। जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन। Let me complete, Sonam. Let me complete first. हाँ, आपने बोला ना कि हम जो आपने ट्वीट किया है उसको हम लोग पब्लिश कर सकते हैं, तो आपने ट्वीट हटा क्यों दिया? डिलीट मैंने नहीं हटाया है। आप जाके आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप रिसर्च भी कीजिए और मेरे ट्विटर पेज पे जाइए। मैंने कुछ डिलीट नहीं किया है। शुक्रिया। First of all, I want to start by saying that I have not yet seen that roast, but I've heard about it, and I've seen 2-3 clips of it. And when the roast happened, I happened to be at a place where Karan and Arjun came to that place and told us कि हमने ये roast किया और ये हुआ. They told us all the dialogues that they had exchanged over there. I was deeply affected by that. I was most disappointed in what I was hearing. I completely believe in freedom of speech, no issues. But we have to understand that we all have a certain responsibility. When I heard what was being described to me, I felt it was a very violent event. There was a lot of violence in that event. देखिए, वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता कि मैं आपको 2 जूते मारूं। वायलेंस वर्बल भी होता है, वायलेंस इमोशनल भी होता है। जब आप किसी को इंसल्ट करते हो तो आप वायलेंस परपेचुएट कर रहे हो। आप एक बहुत ही वायलेंट चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना वायलेंट हूं। तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं है कि मैं आपको वायलेंस दिखाऊं, चाहे वो फिजिकल हो, और उसको मैं आपको बताऊं कि कितना कमाल का है। I don't like it. So I'm sure there are a lot of young people who have liked the show, and I believe that all of us have different opinions, and we are allowed to have a different opinion. But I'll give you my opinion. मुझे लगा कि it was a very violent show, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने
अपने मेरे दोस्त हैं करण और अर्जुन, तो मैंने तो उनको डांटा। मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा है, और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा। तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हाँ गाली दी उसने यार। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज। आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ, तो मुझे मजा आएगा उसमें। किसी के रंग पे कमेंट करना, किसी के सेक्सुअलिटी पे कमेंट करना और उसको जोक बनाना और मैं आपके साथ हंसूं, मुझे तो हंसी नहीं आ रही भाई इसमें। तो आई पर्सनली हैव अ प्रॉब्लम विथ व्हाट दे हैव डन, देयरफॉर आई हैव नॉट सीन द शो। क्योंकि मुझे आई फील कि यार ये मेरा टाइप का शो नहीं, मुझे नहीं देखना। इससे पहले मैंने एक चीज कही थी कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन। मैं AIB की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करण की बात कर रहा हूं। मैं अर्जुन कपूर और जो भी एक्टर्स थे उस दिन, मुझे पता नहीं कौन कौन थे, मैं उनकी, हाँ सब भी जितने भी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मुझे लगता है, और मैं कौन होता हूं उनको कुछ कहने वाला, तो मैं अपने आप को ये चीज कहता हूं कि मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की अच्छाई को टटोलूं, और वायलेंट एक्ट करके मैं लोगों की अच्छाई को टटोल नहीं पाऊंगा। तो ये मेरे थॉट्स हैं उस शो को लेकर, इसलिए मैंने अभी तक देखा नहीं, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। जितना मैं देखूंगा उतना और डिस्टर्ब हो जाऊंगा। 2 क्लिप्स देखे मैंने कहा मुझे नहीं देखना है। It's damn too what's going on right now. I honestly feel okay, you know what the f is going on, yeah? Our country has so much to offer. There are far greater and more serious issues that are happening around the world, right? Now you're talking about whether this trailer is going to be beeped on YouTube or something. When you start to make something, when a writer writes something, a director wants to, you know, it's art. And I don't know why our country has become so sensitive ke matlab behen nahi keh sakte hain, you know, but Scorpios can go flying. You know, I just don't, I'm sorry, I just thought I'd get it out there. देश की हर जो औरत है वो चाहती है उसकी बेटी अनुष्का शर्मा जैसी हो, उसका बेटा अर्जुन कपूर जैसा हो, और हर बहन सोचती है उसका भाई अर्जुन कपूर जैसा हो, बिकॉज उन्होंने देखा है। यार आप अपनी तरह रहो ना, जैसे आप हो, और अच्छा करो, मत गलत काम मत करो, ठीक है? मत ये, बट डोंट लाइक व्हाट इज सेइंग, बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया जा रहा है इस इशू को, and it's not needed. There are far more important things that people can be dealing and fighting for at this moment. I don't think this is even like that much of it. So really, like, and at the moment I think NH10, you know, इतना अच्छा हम सब ने ट्रेलर देखा, we all loved it. अच्छी तारीफें हो रही हैं। Thank you मम्मी। जोड़ा अगर पूछ लेते हम लोग, है ना? Yes. See, my theory on all these things are very simple. It is if you can sell cigarettes, you should not ban them. You should not ban advertising them. You should not say statutory warning, and then kind of keep selling cigarettes. The same way, if you can use a bad word, if as friends, if you're going to be using bad words and you're quite okay with that, it's fun and everything, you shouldn't be imprisoned for. You're not going to be imprisoned for that, no? So why imprison somebody who's having fun, or why do you make that illegal? Not to do it on video. They're having fun. They're not abusing anybody else. They're just having fun. I feel all these are standards which are quite, you know, I don't know, not progressive. I don't think you should take all these too seriously because there's too many other issues in the country. I think you should focus on that instead of saying bad word and all this stuff. It's just so passe. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस यही कहूँगी कि जैसे आपने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कुछ चीज़ होती है, बस नहीं, और यहाँ ये पोडियम नहीं है उसके बारे में बात करनी। मुझे लगता है कि ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ ये तो एक फैक्ट है कि वो जो सेलिब्रिटीज़ करते हैं ना, it gets noticed. So and there are so many people also, of course, who looks up to so many of the actors. So if celebrity supports something like this, you know, then I truly believe that it will encourage others also to do it. So I feel it's very important. It's good. अगर आप बात कर रहे हैं as to what happened recently with the release of you know, the video that got released by All India Bakchod on Twitter, I don't think I'm in a place to comment because I think it's silly, and I really enjoyed watching the video. I mean, if I had time, I would be sitting in the audience and watching the show as well. And I don't think that they were out there disrespecting anybody else in particular. They were all very well known and the scripts were very well rehearsed. They knew what they were doing and they were taking a dig at each other. So I don't think that, I think it's being blown out of proportion. I just think, honestly, my real view is that freedom
boundaries, because then it's not freedom of expression. Plus, I really actually think that I just wrote about it today, that there are actually other real issues in our country, like rape, which is happening every day. About, you'll see, forget the complaints, the non-complaints are also so many. If you actually counter that, there are a lot of issues in our country. Why not focus on that? Then the politicians focusing on something which has not harmed anyone. डीसी आपसे जानना चाहेंगे, आपने AIB वाला वीडियो देखा कि नहीं, रणबीर और अर्जुन का, कैसा लगा आपको वीडियो? You know, to be honest, मैंने नहीं देखा है वो वीडियो, क्योंकि मैं बिज़ी थी काफ़ी, बट जब मैंने देखना चाहा तो वो उन लोग ने पुल आउट कर लिया है, तो आई हैव नॉट बीन एबल टू सी इट। आई एम सो सॉरी। आपको रफली एक आइडिया है कि क्या एग्जैक्टली वो वीडियो है? एज अ बॉलीवुड पर्सनैलिटी आपका क्या कहना है इस बारे में? जो फॉर्मेट है AIB का, वो डेफिनेटली इंडियन पब्लिक जो है वो एक्सेप्ट फ़िलहाल नहीं करती है। तो और अगर दूसरी बात, मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ऑफेंड हुए हैं वो चीज़ को लेके, तो जितना हो सके उतना ना हो, या मे बी यू नो वी आर नॉट रेडी फॉर सच काइंड ऑफ अ शो। होपफुली नियर फ्यूचर में हम डेफिनेटली रेडी होंगे, बट अभी बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है? छोटे बच्चों पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑलरेडी यूट्यूब पे चल रहा है, तो क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट गलत जाएगा या सही जाएगा? जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने नहीं देखा तो मैं नहीं जानती, बट अगर छोटे बच्चों ने देखा है तो आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं लगता कि छोटे बच्चों को डेफिनेटली नहीं देखना चाहिए। एक्चुअली मैंने वीडियो देखा नहीं है, सो मैं अगर वीडियो देखूंगा तो ही मैं कमेंट कर पाऊंगा। बट बता रहा हूँ कि उन्होंने गालियाँ दी हैं, तो आपका क्या टेक? अगर मान लीजिए दी है तो नहीं, अगर दी है तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में दी है, कैसे दी है, और जब तक मैं वीडियो देखूंगा नहीं मैं टिप्पणी दे नहीं पाऊंगा। एक और अहम सवाल कि कंटेंट पे अगर आपको बोला जाए कि कोई कंटेंट ऐसा है जिसमें वल्गर बातें लिखी हुई, क्या आप अपनी आवाज़ देना चाहेंगे उस कंटेंट को? आई एम सॉरी, एक कंटेंट अगर आता है वल्गर कंटेंट और आप उसको अपनी आवाज़ देना चाहते हैं? देखिए, वल्गर कंटेंट को मैं आवाज़ दूंगा नहीं, बट यही है कि देखने का नज़रिया होता है। एक चीज़ को अगर ऐसे कहो तो वल्गर है और ऐसे कहो तो कूल है, तो आप कैसे देख रहे हो। इसलिए हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। आपको अच्छा लगता है आप करिए, नहीं अच्छा लगता है मत करिए, देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। AIB जो है, मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि हमारा देश जो है वो US बन चुका है या इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इतने बड़े आप लोग स्टार्स थे, आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि हमारे बच्चे भी फ़ैन हैं, फैमिलीज़ भी फ़ैन हैं, तो थोड़ा सा आप जो है सोच समझ के इस चीज़ को करते। और जो कि अब तो कुछ हो चुका है वो हो चुका है, उसे कोई बदल नहीं सकता। तो प्लीज़ आगे फ्यूचर में प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, ये सब इन चीज़ों को देखती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, और आगे जो है हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आगे प्लीज़ एक अच्छा मुहिम लेके आगे आइए, जिससे लोगों को अच्छा मैसेज मिले। I don't think that anybody has reign over the Indian culture. I don't think there's any one person who can claim to know everything about our culture. India is a very complex nation, and we're a nation that is also open to foreign influences, but we make it our own. So I think that what is great about India is equality and tolerance and freedom of expression. That's one of the greatest trademarks of our nation. कोई भी भाषा जब किसी को हर्ट करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को तकलीफ़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, तो उसमें बुरा क्या है? कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर या किसी पब्लिक रैली में जाकर ऐसे चलाए। सी आई थिंक हम थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। देश में इतनी प्रॉब्लम्स है। मैं क्राइम पेट्रोल जैसा शो एंकर करता हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे ये इस बात पे जो बहस चल रही है और इस बात पे जो लीगल एक्शन लेने की बात हो रही है, मुझे बहुत छोटी लगती है। मुझे लगता है प्लीज़ ग्रो अप यार, और बहुत कुछ है इस देश में। आप क्राइम पेट्रोल के एक एपिसोड देखेंगे तो आप हिल के रह जाएंगे कि हो क्या रहा है हमारी कंट्री में। प्लीज़ टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट ब्लैक मैजिक, टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट तांत्रिक, टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट फ्रॉड बाबाज। सी देखिए, नहीं मैं कहता हूँ कि देखिए बात ये है कि आप उस भाषा का इस्तेमाल, या इसलिए देखिए ये इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं पब्लिकली इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ और नहीं करूँगा, बट जो करते हैं और अगर एक ह्यूमरस वे में हो रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म, एक नए तरह की ह्यूमर है, इस जनरेशन का ह्यूमर है, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल अगर उसको एंजॉय कर रहे हैं तो करने दीजिए ना। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि अरे मुझे, अगर मैं इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो मैं दूसरों को रोकूँगा। वो एक मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती किसी को बांधने, एक तरफ तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आज हमारी प्रेस जो है कई बार बिना डिटेल जाने कुछ भी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ बना के छाप देती है, उसका कितना बुरा इम्पैक्ट होता है कई बार पब्लिक पे, उसका कोई सोचता है? तो फिर आई थिंक थोड़ा लूजन अप हो जाओ यार, अभी इतना सीरियस मत लो इन चीज़ों को लेकर। मैं उस बात पे, आपकी बात सही कह रहे हैं, मैं उस पर इसलिए कमेंट नहीं करना चाह रहा क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमेंट हो चुका है, और AIB को
मर्यादाओं में रहना चाहिए। जो भी हमारे लोग भी हैं, हमें एक मर्यादा ज़रूर तय करनी चाहिए। एंटरटेनमेंट तो बहुत तरीके हैं करने के। I'd not like to comment on it. I just think that should be freedom of आप किसी न्यूज़ चैनल, आप किसी चैनल पर नहीं डाल रहे हैं ये कंटेंट. इट इज़ irreverent content और ये जो कंटेंट है it's for the internet only. So I think there has to be a freedom of expression. Whoever's making something like this is trying to make some sort of statement. तो जो लोग कह रहे हैं कि that's all I like to say. Thank you. नहीं, ये डेफिनेटली मेरी फैमिली को तो मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकती हूँ. शायद मैंने खुद ने ये एक एपिसोड देखा था बेडरूम को लॉक करके. नहीं तो मेरी मॉम अगर ये सब सुनेगी तो सोचेगी मैं क्या देख रही हूँ. मेरी फैमिली इतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं है, तो थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, तो मैं ओपनली वो नहीं देख सकती हूँ. अगर मुझे देखना है तो चुपके से देखना पड़ेगा मुझे या हेडफोन्स लगा के. तो मतलब एज अ मॉडर्न टाइम के हिसाब से आई थिंक इट्स फाइन, बट आई डोंट नो, इट्स वेरी फनी. आई कांट बिलीव कि रणवीर एंड अर्जुन वहाँ बैठे और करण और जिस हिसाब से बातें हुई जा रही है, आई एम शॉक्ड. बट इट्स मतलब मज़ा आती है सुन के, तो हर किसी को मज़ा आती है ये सारी चीज़ें, बट डेफिनेटली थोड़ी शॉकिंग है मेरे लिए. इसका मेन मुद्दा ये था कि ये लोग चैरिटी कर रहे हैं जो पैसा आने वाला है, बट चैरिटी जिस तरीके से करवाई जा रही है, मुझे थोड़ी सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ये परसों ही देखा, मुझे पता नहीं था, तो मुझको अभी तक वो सिंक इन नहीं हो रहा है कि ऐसी चीज़ों से भी चैरिटी निकली जा सकती है. बट आई थिंक अगर कुछ अच्छा हो रहा है लोगों का, तो फिर जो भी तरीका यूज़ किया जाए. मैंने वो देखा नहीं है अभी तक. व्हेन आई सी इट आई विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन, बट अब तक जो मेरा ओपिनियन है वो हाउ इज इट हार्मिंग एनीवन. मुझे बहुत मज़ा आया था देखकर. आई रियली एंजॉयड इट, दैट्स ऑल. एंड आई थिंक रणवीर एंड अर्जुन आर वेरी स्पोर्टिंग टू टेक इट, मैन, वेरी स्पोर्टिंग. थैंक यू. नहीं, मैं ये देख के एक्चुअली मेरे को करण जौहर से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो एक एग्रेसिव औरत छुपी हुई है वो शायद बाहर आ गई इससे. मैंने देखा यार, इतनी गालियाँ, मतलब बाप रे बाप. इतनी फैमिली फिल्म बनाते हैं, कभी खुशी कभी गम, और उसके बाद ऐसी गालियाँ दी उन्होंने. गालियाँ तो मैं भी देता हूँ, सब देते हैं, लेकिन यार वो एक जगह होती है गाली देने की. अपने माँ बाप के सामने आप गाली नहीं देते हो, फैमिली बैठी है वहाँ नहीं देते हो. क्या हिंदुस्तान के बच्चों को बिगाड़ना चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो? जो वल्गर स्क्रिप्ट देगा उसको बोलूँगा बेटा इतनी वल्गर गालियाँ दूंगा ना, तुझे बंद कमरे में आ जा. लेकिन पब्लिक के सामने नहीं बेटा, बंद कमरे में तू कुछ भी बुलवा ले. देखो 4 दोस्त में सब गाली देते हैं. मैं ये नहीं बोलूँगा मैं गाली नहीं देता हूँ, मुझे भी आती है भाई. मैं बोलूँ गाली तो आदमी के कान से खून गिर सकता है, समझे कि नहीं. लेकिन वो एक जगह होती है. कोई गाली दे रहा है तो आप उसको गाली दे सकते हो. झगड़ा हो गया तो कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है तो कभी निकल जाती. लेकिन आप इस तरह बड़े मंच पे बैठ के लोगों को गालियाँ नहीं सिखा सकते हो भाई. हिंदुस्तान की आवाम को आप क्या सिखाना चाह रहे हो? AIB पे मैं ये कमेंट करना चाहूँगा कि यार मैंने एक ही एपिसोड देखा है और काफ़ी अतरंगी पना हो रहा है, काफ़ी बदतमीजी हो रही है, लेकिन हंस रहे मेरे ख्याल से सब हंस रहे. मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है, गाली गलौज से मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन सब कर रहे हैं. आई थिंक कभी कभार एक महीने में 6 महीने में एक बार हुआ तो ठीक है मेरे ख्याल से, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस इट्स नॉट अ गुड मैसेज गोइंग आउट. इट्स नॉट गुड. आई थिंक ट्रेंड ही है अभी हम लोगों को हिपोक्रेट नहीं बनना चाहिए. मुंबई सिटी को अभी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए. थोड़ा हमें विजन जो हमारा है थोड़ा ब्रॉड करना चाहिए. थोड़ा जो ऑर्थोडॉक्स है सोसाइटी, उसे थोड़ा हमें इजी होना चाहिए. बिकॉज अब यही ट्रेंड है, यही यूथ है, और हम जितना इसे बिलीव करें, जितना हम लोग इसे एक्सेप्ट करें, उतना ही अच्छा होगा हम सबके लिए. कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा वो देखने के लिए. आपकी मर्जी है, आप वो देखें या ना देखें. ना ही उन्होंने टीवी पे चलाया. इट्स ओनली ऑन द इंटरनेट. सो इट्स योर थिंग. इफ़ यू वांट टू वॉच इट यू वॉच इट, इफ़ यू डोंट वांट टू वॉच इट यू डोंट वॉच इट. मगर मुझे लगता है इतनी जो बड़ी कंट्रोवर्सी आजकल, लाइक अगर आप कहते हो कि इंडिया इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब यू हैव फ्रीडम टू एवरीथिंग, सो मैं मानता हूँ उसमें गालियाँ यूज़ हुई, बहुत चीज़ें यूज़ हुई, मगर अगर मुझे लगता है कि मैं जैसे ही स्टार्ट होता है और मुझे लगता है यार मुझे नहीं देखना चाहिए और ये कुछ गलत है, तो मैं नहीं देखूँगा. अगर मुझे अच्छा लगता है, अगर इतना था तो इतने लोगों ने क्यों देखा? करोड़ों लोगों ने देखा है वो. अगर आप उसके व्यूज़ में देखें, ना देखते ना यार. तो मैं इस चीज़ में इतना ज़्यादा ये भी नहीं बोलना चाहूँगा कि सही है, ये भी नहीं बोलना चाहूँगा कि गलत है. अपने अपने व्यूज़ है. अगर आपको पसंद है तो आप देखिए, अगर नहीं पसंद तो ना देखिए. तो उनको, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको छोटे छोटे बच्चों को हमसे भी ज़्यादा मोबाइल के बारे में पता है, तो उनको यूट्यूब गूगल सबके बारे में पता है. जो उन्होंने देखना है वो देखेंगे. यूट्यूब में या गूगल में आजकल क्या नहीं आता. आप बच्चों के बारे में, बच्चे इतना, तो बच्चों को ना दिखाइए ना. अगर बच्चों को
आप अपना बच्चों को बोल दीजिए कि ना देखें वो, या ना उनको यूज़ कराएं। वो तो और भी बहुत सी चीज़ें देखते होंगे जो आपको नहीं पता। सो इट्स आपकी कितनी गाइडेंस है अपने पेरेंट्स को गाइडेंस देनी चाहिए अपने बच्चों को कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, वो उनकी जिम्मेदारी है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ना, कल्चर पहले एंड वी आर इंडियन। जो रेस्पेक्ट हम लोग माँ बहन को करते हैं, सिस्टर को करते हैं, माँ को करते हैं, कोई भी सबको जो हम लोग रेस्पेक्ट, पिताजी माताजी सबको, तो वो रेस्पेक्ट और इंडिया में ऐसा शोभा नहीं देता है। हम अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन कल्चर इज़ डिफरेंट, बट इंडिया इज़ इंडिया। कल्चर का जो होता है, आपने जो बोला है वो अगर जो भी हो रहा है बहुत आपत्तिजनक है। आई डोंट लाइक दैट। रॉन्ग वर्ड, रॉन्ग वीडियो, आजकल यूट्यूब ऐसा चीज़ है होल वर्ल्ड में देखता है। हम लोग को कल्चर को ब्रेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर इंडियंस। बस मैं हमेशा एक ही बात बोलते रहता हूँ, हिंदुस्तान में रहो तो हिंदुस्तानी बन के रहो, और हिंदुस्तान ऐसी जगह है जो हिंदुस्तान का कल्चर मेंटेन करो, उसमें कुछ भी करो। अमेरिका लंदन जाने से कोई पंखा नहीं आ जाता है। हम लोग को कल्चर, दैट्स ऑल।